Hello students and welcome to Samoshi's online classes. In yesterday's lesson we had completed the poem Wind. In today's lesson we'll begin with the first chapter of the other book named Moments. Okay? So let's get started with the first chapter. So the first chapter is titled The Lost Child and it is written by Mulk Raj Anand. So let us first know few facts about Mulk Raj Anand. So Mulk Raj Anand was born on 12th December 1905 and he died on 28th September 2004. He was an Indian writer in English, notable for his depiction of the lives of the poorer castes in traditional Indian society. तो ये बेसिकली अपनी स्टोरी में पुअर कास्ट के लोगों की लाइफ डिपिक्ट करते हैं इन द सेटअप ऑफ इंडियन सोसाइटी, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी. ओके, हिज वर्क्स अटेम्प्टेड टू कैप्चर द सोशल रियलिटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉलोनियल मास्टर. ओके, ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियंस की लाइफ कैसी थी. ओके, ही ऑल्सो अटेम्प्टेड टू depict all such things. Along with Raja Rao, R.K. Narayan and Ahmad Ali, Mulk Raj Anand is considered one of the pioneers of Indian writing in English. His works attempted to give a soft touch to the emotions of the people. Few of his notable works are Coolie, Untouchable, and there are many more. And few of the notable awards which Mulk Raj Anand had received are Sahitya Academy Award, Padma Bhushan, and International Peace Prize. So now let us begin with the story titled The Lost Child. A synopsis is given before we begin with the story, so let us read that first. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. So there is a child and he goes to a fair. Fair means मेले में जाते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ. And he is very happy and excited. एंड उनको जितनी भी स्वीट्स एंड टॉयज़, जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले की हुई रहती हैं मेले में, वो उनको चाहिए होती हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाई देम फॉर हिम. लेकिन इनके पेरेंट्स इनको वो सारी चीज़ें खरीद कर नहीं देते हैं. वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है कि कुछ इंसिडेंट्स होती हैं, उसके बाद there is a man who offers him all the things like sweets, toys, whatever was displayed in the fair, he offers him. But then what does the child do? He refuses them all. Okay, वो सारी चीज़ें वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं लेने से. तो while reading the story will come to know that ऐसा क्या होता है कि जो चीज़ें इनको पहले चाहिए होती हैं बाद में दी जाने पर ही refuses, वो मना कर देते हैं. So let us begin with the story then. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. So Mulk Raj Anand begins with a festival of spring. Okay, what he says कि spring season होता है, स्प्रिंग सीज़न है एंड उस सीज़न में एक मेला लगा होता है. ओके, एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. सो इट्स नॉट दैट स्प्रिंग सीज़न में लाइक कम्प्लीटली आ चुका. स्प्रिंग सीज़न हैज़ जस्ट अराइव्ड. तो अभी भी विंटर सीज़न के इफ़ेक्ट रह गए थे. ओके, सो विंटर सीज़न में कैसे हर तरफ शेड देन छाँव, कूलिंग इफ़ेक्ट रहता है, तो वैसे ही जो नैरो लेन्स थी, पतली जो गलियां थी. ओके, एलेज ऑल्सो मीन्स गली. ओके, जो पतली पतली गलियां थी
उस पे विंट्री शेड्स थे, मीन्स अभी भी कूलिंग इफेक्ट था, ओके, छाँव थी हर जगह। तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज बोथ मीन्स गली। सो उस नैरो लेन्स एंड एलीज से क्या निकल रहा था? इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, ओके। गेली मीन्स चीयरफुल एंड क्लैड मीन्स ड्रेस, ओके। सो उस गली से कौन निकल रहे थे? बहुत चीयरफुल कलरफुल ड्रेस में ह्यूमैनिटी, बहुत सारे लोग उस गली से इमर्ज कर रहे थे, निकल रहे थे। दे वर वेरी हैप्पी, ऑल वर वेयरिंग डिफरेंट कलर क्लोथ्स। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, others sat being carried in bamboo and bullock carts. So उस गली से लोग कैसे निकल रहे थे? कुछ पैदल चलकर निकल रहे थे, ओके। Some were riding horses, ओके, एंड अदर्स बाकी क्या कर रहे थे? वो डोली देखा होगा आपने, तो वो डोली में दे वर कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ी पर बैठकर आ रहे थे। वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. So बहुत सारे लोग आ रहे थे, कोई पैदल चल के आ रहे थे, कोई बैलगाड़ी से, कोई डोली में, देन कोई हॉर्स राइड करके आ रहा था। इस भीड़ के बीच में there was one little boy who ran between his father's legs. वो अपने पापा के पैरों के इर्द गिर्द दौड़ रहा है, ओके। He was brimming over with life and laughter. Brimming means overflowing. वो बहुत ज़्यादा लाइवली लग रहा था, बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था वो बच्चा, एंड इधर उधर वो उछल रहा था, अपने पापा के पैरों के इधर उधर उछल रहा था, ओके। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way, okay. सो इनके पेरेंट्स बीच बीच में इनको, इस बच्चे को बुला रहे थे कि कम चाइल्ड कम, इधर आइए इधर आइए। एज ही लैग्ड बिहाइंड मीन्स पीछे छूट जाना। नाउ ये पीछे कैसे छूट जा रहे थे? बिकॉज ही गॉट फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, ओके। रास्ते में जितनी दुकानें थी रोड के दोनों साइड, तो उसमें जितने खिलौने रखे हुए थे, तो उन्हीं खिलौनों को देखने में ये बिजी हो जाते थे एंड ये पीछे छूट जाते थे। तो whenever this boy he was lagged behind, his parents called him, okay. So now we got to know कि उस पतली सी रोड से इतने सारे लोग जो कलरफुल ड्रेसेस में आ रहे हैं, जो बहुत खुश हैं, वो एक्चुअली जा आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली मेले में जा रहे हैं, ओके। स्प्रिंग सीज़न के टाइम पर जो मेला लगा था वहीं पर सारे लोग जा रहे थे। उसी में ये छोटा सा बच्चा भी हंसते खेलते जा रहा था। टॉयज़ को शॉप्स में जो टॉयज़ डिस्प्ले की हुई थी, ऑल ही वॉज फैसिनेटेड, देन वॉचिंग, मीन्स ही वॉज वेरी हैप्पी इन अ गे मूड, एंड वो बहुत मेरिली उस मेले में जा रहा था अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, okay. So now what happens, whenever he lagged behind, so his parents called him. तो जैसे ही अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनते तो ही hurried towards his parents, अपने पेरेंट्स के पास दौड़ते हुए वे वो आ जाते। His feet were obedient to their call, इनके पेरेंट्स जब बुलाते तो ये दौड़ कर आ जाते। इनके पैर जो थे वो काफ़ी ओबीडियंट थी, बट इनकी आंखें कहाँ टिकी हुई थी? They still lingered on the receding toys. Receding toys means सपोज़ आप आगे चल रहे हैं तो what happens, आपको लगता है सारी चीज़ें पीछे चली जा रही हैं, तो जो सामान जो खिलौने पीछे दुकानों पर छूट गई हैं वो उन्हीं को देख रहे थे, ठीक है। लेकिन ये इनके पैर जो हैं इनके पेरेंट्स की तरफ जा रहे थे। सो दिस सिंपली मीन्स कि वो चल तो रहे थे अपने पेरेंट्स के साथ, उनकी आवाज़ पर ये दौड़ कर तो आ गए अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन इनका ध्यान कहाँ था? अभी भी उन खिलौनों पर। एंड रिसीड मीन्स मूव बैक, ओके। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes.
ओके, सो होता क्या था कि इनके पेरेंट्स कुछ आगे बढ़ जाते, जब देखते कि इनका बच्चा इनके साथ नहीं है तो दे यूज़ टू कॉल हिम, तो फिर ये बच्चा जो है दौड़कर आ जाता। ओके, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ओके, जहाँ इनके पेरेंट्स इनका वेट कर रहे थे, तो जब ये बच्चा वहाँ पहुँच जाता तो ही कुडंट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। इनके मन में क्या होता था कि मैं उस खिलौने को ले लूँ, और इस डिज़ायर को, इस इच्छा को वो सप्रेस नहीं कर पाते थे, दबा नहीं पाते थे। इवन दो ही न्यू, जबकि वो जानते थे दैट हिज पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बाई देम फॉर हिम, इंस्टेड वो क्या करेंगे, वही ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, ओके, आंखें दिखाकर इस बच्चे को वो मना करेंगे। लेकिन फिर भी ये बच्चा जानता था कि मेरे पेरेंट्स यही करेंगे, मुझे आंखें दिखाएंगे, वही कोल्ड स्टेयर, मुझे घूर कर बोलेंगे नहीं नहीं, लेकिन फिर भी ये बच्चा अपनी डिज़ायर्स को सप्रेस नहीं कर पाता था, वो अपने पेरेंट्स को बोलता था, लाइक ऑल अदर चिल्ड्रन, ओके, एनी अदर चिल्ड्रन, he also used to express his desire to buy different toys, okay, but ultimately what happened, his parents didn't used to buy them for him. I want that toy, he pleaded, फिर अपने पेरेंट्स से ये ज़िद करता कि मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way, okay, सो जब ये बच्चा ज़िद करता तो इसके फादर क्या करते, अपनी आंखें बड़े बड़े करके लाल लाल आंखें अपने बच्चे को डराने के लिए दिखाते। ओके, टिरेंट्स वे मीन्स वही क्रूएल वे में, जब आपके पेरेंट आपको गुस्से से देखते हैं तो दे आर द वे दे लुक इज़ डिफरेंट, अ काइंड ऑफ ऑप्रेसिव रूलर, राइट। सो उसी तरह ये इनके पापा भी इनको डराते कि नहीं नहीं ज़िद नहीं करो। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" So basically क्या होता है कि when your father scolds you, so mother comes to protect you and vice versa. So जब देखा इनकी मम्मी ने कि ये बच्चे को आँखों से डरा रहे हैं, आँख दिखा रहे हैं, तो इनकी मम्मी आती एंड शी वुड से कि देखो बेटा आगे देखो, आगे क्या है, ओके। मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड, ओके, सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट शी वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, शी वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी, ओके, एंड शी डिडंट वांट दैट इनके बच्चे का मूड खराब हो या उसको डांट पड़े। सो शी वॉज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, टेंडर लिखा हुआ है, तो वो अपने बच्चे को फिंगर देती, ओके, हाथ बढ़ाती और बोलती मेरे पास आइए, और वो देखिए आगे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और आगे क्या दिखाती वो अपने बच्चे को, मस्टर्ड फील्ड, ओके, मस्टर्ड फील्ड बहुत वाइड एरिया में फैला हुआ था, तो वही मस्टर्ड फील्ड अपने बच्चे को दिखाती। एंड इनका माइंड जो है, इनका ध्यान जो है, अटेंशन जो है अपने उनके टॉयज़ से दूसरे तरफ ये ग्रैब करती। ओके, सो दिस इज़ हाउ दे वर गोइंग टू द फेयर। अभी वो फेयर में पहुँचे नहीं हैं, वो रास्ते में हैं, वो जा रहे हैं, एंड बीच बीच में जो दुकानें हैं, तो जो भी टॉयज़ दिख रही, तो बच्चा ज़िद कर रहा है, तो इनके पापा जब इनको डांट रहे हैं, आंखें दिखा रहे, तो सॉरी इनकी मम्मी जो हैं, she is trying to draw his attention to the other side, to different things, okay, like अभी उन्होंने इस बच्चे का attention कहाँ draw किया, mustard field में, okay। So that's all for today children, tomorrow we'll continue further, till then stay safe and keep studying, thank you.